CSC मैम CSB है। CSB को तो ज्वाइन करना है। कुछ स्टूडेंट CSC के हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो लोग छोड़ दें क्लास को। सूरज कुमार, सूरज कुमार, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Today I had a little problem. There was no electricity, so Wi-Fi was not on. फिर मैंने अभी बड़ी मुश्किल से कनेक्ट किया है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज। No electricity at my place. ले लेंगे हम, ले लेंगे। Let me just check if Suraj Kumar, Suraj Kumar, are you there? Please join your class in CSC. Suraj Kumar. Vishal Agarwal, please join your class in CSC. Vishal Agarwal, Yash Jangir, ले लो मैं। सब्जी बनाऊं क्या? yes. Just let me admit all. Please keep your mics on mute. Prithviraj, Yes, ma'am. please your mic on mute.
Okay. So now let's continue the chapter that we were doing yesterday. We were talking about harmony in family and we were talking about the 9 values in the family. मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. आज बेटा बहुत इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है. मैं देखती हूँ क्या दिक्कत है. मैंने बहुत मुश्किल से आज कनेक्ट किया हुआ है. नो इलेक्ट्रिसिटी, नो कनेक्शन. मैम एक्चुअली ईयरफोन्स में भी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल. इसी वाईफाई भी नहीं चल रहा बेटा. ठीक आ रही है आवाज. किसी तरह से मैं आज कनेक्ट करके कर रही हूँ. पता नहीं कितनी देर चल पाएगा, ये भी नहीं पता मुझे. तो अब आ रही है? यस मैम आ रही है. यस मैम क्लियर आ रही है. ठीक है, ठीक है. Okay, so let me share my screen with you. Just give me a second. एक second. We were doing harmony in the family and I talked about the values of trust and respect. So I'll continue with that. You can see my screen now. So what are the 9 values? Trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude, and love. These are the 9 values that are important in any kind of relationship, whether it is in the family or in the society. Now, we'll talk about the first most important value, जो कि है trust. Now, when we talk about trust, it means that you are assured that the other person wants you to be happy, wants you to be prosperous. वो खुद तो है happy and prosperous, but वो तुम्हारी भी happiness और तुम्हारी भी prosperity चाहता है. So that is, getting the feeling that yes, this person wants me to be happy, wants me to be prosperous. Just a minute. Jatin Sharma. Why is he coming? रोल नंबर भी सही नहीं है. Okay. Now, when we talk of trust, as I said, it means that other wants you to be happy, other wants you to be prosperous. Now, the next point, to keep the trust on ourselves and on others. अगर हम अपने पे और दूसरों पे ट्रस्ट रखना चाहते हैं और चाहते हैं दूसरे हम पे भी ट्रस्ट रखें, then we have to pay attention on intention. Now, let's see what is the difference between two things. Okay, one is the intention and the other is the competence. So we have to pay attention on the intentions and we have to understand if we or the other person is not able to do benefit, it is because we are lacking competence. अब दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं हमारे intentions और दूसरा होता है हमारी competence. ट्रस्ट कब होता है? जब राइट अंडरस्टैंडिंग होती है दूसरों के इंटेंशंस और कॉम्पिटेंस की. Okay, so when we have right understanding of the intention of all the human beings around us, we start trusting them. So let's see what is the difference between intention and competence. इन दोनों का हमें difference समझना है. I'll give you lots of examples for that. Let's just go through it. Let me just check. Where are these people? Keep on coming, going.
Can anybody tell me what is the difference between intention and competence? यहाँ दो words लिखे हैं, कोई भी बता सकता है क्या डिफरेंस है इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में? Anybody? Anybody? I'm waiting for your answer, beta. Can anybody tell me what is the difference between intention and competence? Nobody can tell. Now see, this is the definition. Intention is what one... हाँ बोलो. मैम कॉम्पिटेंस मतलब जो अपनी क्षमता होती है और इंटेंशन का मतलब अपना जो इरादा होता है कुछ करने का. ठीक है, अभी मैं आपको और फर्दर इसको एक्सप्लेन करती हूँ. इंटेंशन इज व्हाट वन एस्पायर्स फॉर, यानी कि हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग हमारे इंटेंशंस बनते हैं. एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू डू व्हाट इज राइट, दैट इज द इंटेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. कॉम्पिटेंस क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू फुलफिल दैट एस्पिरेशन. कॉम्पिटेंस के थ्रू ही हम अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं. द कॉम्पिटेंस मे बी लैकिंग. ओके, हो सकता है कॉम्पिटेंस जो है वो कभी पूरी हम अपनी एबिलिटी दिखा पाए, कभी हो सकता है नहीं दिखा पाए. इट नीड्स टू बी डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड थ्रू प्रैक्टिस. जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और जैसे जैसे आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ते हो, पढ़ते हो, तो आप उस फील्ड में क्या हो जाते हो? कॉम्पिटेंट हो जाते हो. सो कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन. आपका इंटेंशन अच्छा है, आप चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, कुछ बन जाऊं. सो आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द फैमिली. कॉम्पिटेंस मीन्स आप अपनी एबिलिटी डेवलप करते हो जिससे कि आप उस चीज को पूरा कर पाओ. अब आपकी कॉम्पिटेंस टाइम टू टाइम वेरी करेगी. कभी तो आप बड़े सीरियस होकर के यू विल बी स्टडीइंग दैट पर्टिकुलर थिंग और यू विल बी डूइंग सर्टेन थिंग्स. कभी होगा कि आप नहीं कर पाओगे, है ना. कभी आप अच्छी एबिलिटी दिखाते हो, कभी आप कम दिखाते हो. I'll give you another example. Now suppose there's a day on which you have a very good friend, है ना, और कॉलेज में आप मतलब कॉरिडोर से निकल रहे हो और किसी पर्टिकुलर डे यू डोंट टॉक टू योर फ्रेंड. पास से निकल रहे हैं फ्रेंड के पास से और उससे हमने बात नहीं करी. नाउ हु इज दिस? प्लीज माइक ऑफ करो लोके. कर दिया मैम. Are you all there? Can you hear me? यस मैम, बट पहले आवाज नहीं आ रही थी. Yes, अरे ma'am. कनेक्शन जा रहा है, मैं बता रही हूँ ना. आज मैं हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ. नो इलेक्ट्रिसिटी इन माय प्लेस, सो आई कैन नॉट से कि कितने लंबे चल पाएगा, बट स्टिल एनीवे लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन विद यू. कोई बात नहीं मैम, छुट्टी कर दो आज. जितना मैं करा पाऊंगी मैं आज करा रही हूँ. आज प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ज्यादा हवा चल रही है एंड ऑल. इट्स नॉट गुड या. ओके, so as I was talking to you about intention and competence, so suppose you are walking in the corridor of your college and a very good friend of yours जो रोज आपको ग्रीट करता है और बहुत अच्छे से बात करता है, उस पर्टिकुलर डे वो कॉरिडोर से आपके सामने से निकल जाता है और वो आपसे बात ही नहीं करता है. कुछ अपनी परेशानी में है या जो भी है, वो वहां बगल से निकल जाता है. You get very angry and you say what kind of a friend this is. अब मैं इससे मिलूंगा तो मैं इससे जरूर बात नहीं करूंगा. Now what do you think? उसका क्या रीजन हो सकता है?
आपने मेरी बात किसी बात से सेड होगा और उसका मन नहीं होगा बात करने का, वो नाराज हो सकता है। बिल्कुल, वो हो सकता है किसी बात पे सैड हो, नहीं नाराज नहीं है आपसे, कोई लड़ाई नहीं हुई उसकी, बस उस पर्टिकुलर डे उसने आपसे बात नहीं करी, तो आप क्या हुए, आप अंदर ही अंदर नाराज हो गए। यू डिडंट फील लाइक नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट हिम आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम, आपने अपने मन में सोच लिया। तो क्या उसका इंटेंशन गलत था या उसकी कॉम्पिटेंस लैकिंग थी? अब हमें ये समझना है। हम हमेशा, हमारा विश्वास टूट गया, हमने कहा ये तो बिल्कुल अच्छा फ्रेंड नहीं है, पता नहीं आज ये इस तरह से अगर बिहेव करेगा, मैं तो इससे फ्रेंडशिप नहीं रखूंगा, तो हमारा क्या हो गया, तुरंत ट्रस्ट जो है वो टूट गया उस फ्रेंड में। लेकिन हमने ये नहीं देखा, बाद में हमको पता चलता है किसी थर्ड पर्सन से कि उसका वॉलेट खो गया आज, तो आज वो बहुत परेशान है, तो तुरंत हम फिर अपना माइंड चेंज करते हैं और फिर हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होने लगता है। तो उस टाइम उस पर्टिकुलर पर्सन की कॉम्पिटेंस नहीं थी आपसे बात करने की, या आप, क्योंकि वो परेशान था, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं था। इंटेंशन इज व्हाट इज राइट। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ गुड इंटेंशन, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द राइट वे ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंग टू नेचुरल एक्सेप्टेंस। लेकिन टाइम टू टाइम एवरी ह्यूमन बीइंग की कॉम्पिटेंस वेरी करती है, वो किसी भी रीजन से वेरी कर सकती होती है। तो intentions are something which are naturally acceptable. Competence is something which varies. The ability to fulfill the aspiration change होती रहती है। मैंने बताया ना, आप सपोज आप इंजीनियरिंग करने चलते हो, आपकी इंटेंशन है कि ठीक है मैं करूंगा और फिर मैं अपने घर में कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन क्या होगा, कॉम्पिटेंस कभी आप हो सकता है परेशान हो, बीमार हो, कोई भी रीजन होगा, तो आप अपना 100% इनपुट नहीं दे पाते, आपके पेरेंट्स नाराज होते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो कॉम्पिटेंस क्या हो रही है, वेरी हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके इंटेंशन पे ही ट्रस्ट उनका टूट जाए कि ये तो करना ही नहीं चाहता है, ऐसा होता है। डज इट हैपन? यस बेटा, डज इट हैपन? आर यू एबल टू हियर मी? मैम वापस बोलिएगा, आवाज नहीं आई थी उस टाइम। अब मैंने बोला कि मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, है ना, और टाइम टू टाइम आपकी कॉम्पिटेंस ऑफ डूइंग द स्टडीज इट वेरीज। आज आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, नंबर अच्छे आए, कल किसी रीजन से आप परेशान थे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए, या और कोई रीजन से आपने उतना अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तो पेरेंट्स कहते हैं ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपके कॉम्पिटेंस पे वो ट्रस्ट उनका टूट रहा है या इंटेंशन पे ट्रस्ट टूट रहा है? किस पे ट्रस्ट ब्रेक होता है? इंटेंशन पे। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो, अदर्स कैन हियर मी, है ना, और आपकी आवाज आप देखो आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। हाँ बताओ, कौन बता रहा था? इंटेंशंस पे। पेरेंट्स इंटेंशन पे शक करने लगते हैं कि ये तो करना ही नहीं चाहता, जबकि आपकी कॉम्पिटेंस टाइम टू टाइम वेरी करती है। जब भी कोई हमारे कॉम्पिटेंस जो है उसके बेसिस पे हमारे इंटेंशंस तक पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि ट्रस्ट तुरंत टूट जाता है। So trust is something which should be based on intentions, not on competence. Because competence may vary from time to time, but intention सबके अच्छे होते हैं। आपका इंटेंशन है कि मैं अच्छा बन करके अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, लेकिन आपका competence time to time change होगा। It is the ability to fulfill the aspiration, और जब competence lack करता है, it needs to be developed through proper understanding, through proper practice। ये हमारा चेंज होता रहता है। तो हमें कभी किसी और के भी, मान लो ये तो चलो तुम्हारी बात है, कई बार हम अपने पेरेंट्स के इंटेंशन पे भी शक करते हैं। आपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगी, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं दे पा रहे, तो उनकी कॉम्पिटेंस उस टाइम नहीं है। इंटेंशन हर एक का होता है कि हम कुछ करें अपने अपने बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ हम उनको, in a way we try to do everything that we can for them, लेकिन competence varies from time to time and children start trusting, mistrust create होता है कि ये तो करना ही नहीं चाहते। तो जब हम, तो तुरंत टूट जाता है, लेकिन हर एक का इंटेंशन होता है that
They want to make me happy, make me prosperous. So we cannot keep on, mistrusting somebody's intentions. The competence is something जो vary करती है. हम पहले competence को judge करें और फिर उसके according अपने trust को create करें. So did you understand the difference between intention and competence? कि दोनों में क्या difference है? Beta, did you understand the difference between intention and competence? Yes, ma'am. Can you give Yes, me an ma'am. example? कोई एग्जाम्पल दो, आपकी तरफ से भी एग्जाम्पल दो कोई, कि हमने कब किसी के ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, उसके कॉम्पिटेंस नहीं, हमने तो इंटेंशन पे ही उसको मिसट्रस्ट कर दिया किसी के ऊपर. एनी एग्जाम्पल विच यू कैन गिव. कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल जब आपका मिसट्रस्ट हुआ हो किसी के कॉम्पिटेंस पे, पर आप एक्चुअली उसके इंटेंशंस पे मिसट्रस्ट कर रहे थे. ट्रस्ट का बेसिस क्या होता है? अच्छा चलो ऐसे बताओ, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ट्रस्ट? व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ ट्रस्ट? इंटेंशन और कॉम्पिटेंस? Intention. Basis of trust should be intention. But what is the misunderstanding? Misunderstanding क्या होती है? मैम लोग कॉम्पिटेंस को इंटेंशन समझ लेते हैं. हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि हमें ट्रस्ट हमेशा दूसरों के इंटेंशंस पे बेस करना चाहिए, रादर देन बेसिंग इट ऑन कॉम्पिटेंस. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं. नेक्स्ट चीज है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्पॉइल कर लेते हैं. नाउ रिएक्शन इज समथिंग विच हैपेंस इंस्टेंटली. Okay, when we start doubting on somebody's intentions, that's a reaction. आपने फ्रेंड को देखा, आज उसने बात नहीं करी, आपने तुरंत कहा मैं अब इससे बात नहीं करूंगा, कभी नहीं बोलूंगा. तो आपको किस पे डाउट हुआ? इंटेंशन पे. आपने क्या दिया? रिएक्शन दिया. आप इरिटेट हो गए, आप गुस्सा हो गए, हो सकता है आप लड़ने भी लग जाएं. सो दैट इज अ रिएक्शन एंड इट इज इंस्टेंट. और ये किस पे हो रहा है रिएक्शन? इंटेंशन के बेसिस पे. ठीक है, जब हम किसी के इंटेंशन पे डाउट करते हैं, हम रादर देन जजिंग, गिविंग टाइम टू द जजमेंट, वी स्टार्ट डाउटिंग ऑन समबडीज इंटेंशन. दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सो व्हाट इज रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स क्या है? वी आर एबल टू सी दैट द रिलेशन इज एट द लेवल ऑफ आई. है ना? जब हम ये देख पाते हैं कि रिलेशन जो है वो आई के लेवल पे है, तो हम क्या करने लग जाते हैं? We start, just a minute, give me a second. Just give me a second. Read this reaction and response difference. एंड रिस्पॉन्स कब होता है? जब हम ये देख पाते हैं कि रिलेशनशिप जो होती है
वो आई के लेवल पे होती है, यानी कि बॉडीली लेवल पे होती है. इट इज एट द लेवल ऑफ आई. We start feeling the relatedness with the other and we start understanding the intention of the other. We don't doubt the intention of the other. तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं कि आज मेरे फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम है, पता तो करें जा करके. When we start feeling this sense of responsibility to improve our own competence, है ना, and the others' competence, जब हम अपनी कॉम्पिटेंस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करने लगते हैं, अगले को भी गाइड करते हैं, उसकी भी कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करते हैं, तो हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए काम कर पाते हैं. नहीं तो हम सारे टाइम दूसरों के इंटेंशंस पे डाउट करके तुरंत रिएक्शन देते हैं और लड़ते ही रहते हैं. सो वी डोंट हैव टू लिव आवर लाइफ लाइक दिस. We have to trust the intentions of the other. The competence may vary from time to time. अगर ऐसा होता है तो हम समझें कि आई के लेवल पे रिलेशनशिप होती है, दूसरों के इंटेंशन पे हमको डाउट नहीं करना है. अपनी फैमिली में ही देख लो, आप अपने ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के भी इंटेंशन पे डाउट करके गुस्सा हो सकते हो. तो हमको ऐसा नहीं करना है. हमको देखना है कि हो सकता है आज उनकी कॉम्पिटेंस नहीं हो, आज वो नहीं कर पा रहे हो चीज को, थके हुए हों, they are sick for some reason, they don't have the money or whatsoever. So you have to understand this कि intention सबके अच्छे होते हैं, competence vary करती है. तो हम आई का जो लेवल है उसको समझें कि रिलेशन हमेशा आई लेवल पे होती है और हमें इंटेंशंस पे ना डाउट करके कॉम्पिटेंस समझनी है और अपनी कॉम्पिटेंस को भी इम्प्रूव करना है, दूसरे की कॉम्पिटेंस को भी इम्प्रूव करना है. इससे हम हमेशा म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए काम करेंगे. इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स? यस मैम. इंटेंशन, कॉम्पिटेंस और रिएक्शन रिस्पॉन्स. तो आगे से हम क्या देंगे, रिस्पॉन्स देंगे कि रिएक्शन देंगे? रिस्पॉन्स देंगे. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज बहुत जल्दी ट्रस्ट ब्रेक होता है, बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्पॉइल हो जाती हैं. तो हमको ऐसा नहीं होने देना है. वी हैव टू ऑलवेज give time to relationships, otherwise they'll break very easily based on respect, based on trust. तो अगली क्लास में हम करेंगे रिस्पेक्ट. ओके, let me take your attendance. I'll just go through these slides once again. आज हमने करी फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ रिलेशन में ट्रस्ट किया है. आज हमने ट्रस्ट या विश्वास. ओके, वी टॉक्ड अबाउट रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिस्पेक्ट. Just let me take your attendance. If you have any queries, you can ask me. Okay, do you have any doubts? In trust, आज हम केवल ट्रस्ट ही कर पाए. तो किस ट्रस्ट में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. Otherwise, I would end my class. Nothing? Okay, so that will be all for today. Thank you very much. Thank you, ma'am. Okay.